जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारत जापान संवाद सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतियों के मूल में रखनी चाहिए मानवता। डॉक्टर हर्षवर्धन का कोरोना पर बड़ा बयान, बोले कोरोना का बुरा समय टला, अगले महीने से शुरू होगा टीकाकरण। मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर, मंगलवार सुबह 9 बजे शुरू होगी गिनती, मतगणना की होगी रिकॉर्डिंग। और ताराचक आरसपुरा के किसान फसलों के मनचाहे दाम न मिलने से परेशान, सरकार से लगाई मदद की गुहार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6वें भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भारत जापान संवाद को निरंतर समर्थन देने के लिए जापान सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने एक पारंपरिक बौद्ध साहित्य के पुस्तकालय और शास्त्रों के निर्माण का प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि ऐसा पुस्तकालय भारत में बनता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। उन्होंने कहा कि अतीत में मानवता ने अक्सर सहयोग के बजाय टकराव का रास्ता अपनाया। संवाद था लेकिन वो एक दूसरे को नीचे खींचने के लिए था। आइए अब साथ मिलकर उठते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी नीतियों के मूल में मानवतावाद को रखना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इट इज एन ऑनर टू बी एड्रेसिंग द 6th Indo-Japan Samvad Conference. 5 years ago, we began this series of conferences with former Prime Minister Shinzo Abe. Since then, Samvad has travelled from New Delhi to Tokyo, from Yangon to Ulaanbaatar. In this journey, it has remained true to its fundamental objectives: to encourage dialogue and debate, to highlight our shared values of democracy, humanism, ahimsa, freedom and tolerance, and to carry forward our ancient tradition of spiritual and scholarly exchanges. It will aim to translate them and make them freely available to all monks and scholars of Buddhism. The library will not only be a depository of literature, it will also be a platform for research and dialogue, a true samvad between human beings, between societies, and between man and nature. Its research mandate
will also include examining how Buddhist message can guide our modern world against contemporary challenges. Challenges like poverty, racism, extremism, gender discrimination, climate change, and many others. Friends, about 3 weeks ago, I was at Sarnath. Sarnath is where Lord Buddha gave his first sermon after attaining enlightenment. This Jyoti Punj emerged from Sarnath, spread across the world, embracing the value of compassion, nobility, and above all, Manav Kalyan, the good of entire humanity. And gently, peacefully, it changed the course of world history. This is the best service we can do for our future generations. Friends, the essence of Samvad remains togetherness. Let Samvad bring out the best in us together. This is the time to draw upon our ancient values and prepare for the times to come. We must keep humanism at the core of our policies. We must make harmonious coexistence with nature at the central pillar of our existence. Samvad, a dialogue with ourselves, with fellow human beings, and with nature can light our way on this path. I compliment the organizers for organizing this important event and wish them all success in their deliberations. देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का मिलना जारी है। हर दिन 20,000 से अधिक लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं। सरकार अगले साल से टीकाकरण करने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि हमारे यहाँ दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले कोरोना रिकवरी रेट सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमारे पास दुनिया में सबसे अधिक रिकवरी रेट है, 95 और 96% के बीच। अमेरिका, रूस और ब्राजील जैसे दुनिया के कुछ विकसित देशों की तुलना में जहाँ रिकवरी रेट 60 से 80% के बीच है, इसे देखकर पता चलता है कि हम बेहतर स्थान पर हैं। ने कहा, हमारे यहाँ कोरोना से होने वाले मृतकों की दर 1.45% है। मुझे लगता है कि बुरा वक्त शायद खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी सावधानी की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ मुख्य हथियार मास्क, हाथों को साफ करना और शारीरिक दूरी ही है, जिसका हम सभी को पालन करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, भारत में जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों का टीकाकरण शुरू हो सकता है और सरकार की पहली प्राथमिकता वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि शायद जनवरी में किसी भी सप्ताह में ऐसा समय हो सकता है जब सरकार भारत के लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन देने की स्थिति में होगी। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। आई फील दैट द वर्स्ट मे प्रोबेबली बी ओवर, बट with a strong, you see, note around caution that we need to be very, very strictly following the COVID appropriate behavior. We cannot afford to relax on that front. So the major tool against COVID or achieving success in this fight will ultimately be this mask and of course hand hygiene and physical distance that we are all supposed to follow. तो हमारी योग्यता और क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हमने पूरी तैयारी की है। नीचे लेवल तक पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व करके स्टेट के लेवल पर टास्क फोर्स बनाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर देश में
यानी कई हजार मास्टर ट्रेनर्स को पहले ट्रेन किया है। उसके बाद हम देश की 33 स्टेट्स में स्टेट लेवल पर ट्रेनिंग कर चुके हैं। करीब 260 डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पर हम ट्रेनिंग कर चुके हैं 20,000 से ज्यादा लोगों की। और जो हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है, और जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ये जो वैक्सीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो सारी टेक्निक को यूज करके हमने, जो हमारा नॉर्मली भी वैक्सीनेशन के कैंपेन में यूज होता था, वो प्लेटफॉर्म अब हमने उसको कोविन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित कर दिया। आई थिंक थिंग्स आर सिग्निफिकेंटली in a declining phase. I say that because right now you have just about 3 lakh active cases in the country. A few months back you had almost 10 lakh cases. Out of over 1 crore cases that have happened, 95 lakh 50,000 more than that have already recovered, gone back home. We are having the highest recovery rate in the whole world between 95 and 96. जिला विकास परिषद के चुनाव संपन्न होने के बाद अब मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जम्मू जिले के विभिन्न हिस्सों से मतपेटियां विक्रम चौक स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंच चुकी हैं, जहां मंगलवार सुबह 9 बजे मतगणना शुरू होगी। ऐसी उम्मीद है कि दोपहर बाद तक जम्मू जिले की सभी 14 सीटों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। सोमवार को यहां मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सोमवार को जिले के विभिन्न हिस्सों से मतपेटियां यहां पर पहुंचने के साथ सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच मतगणना को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कॉलेज परिसर में विभिन्न कैबिन बनाए गए हैं, जहां 2-2 कर्मचारी मतपेटियों को खोलकर गणना करेंगे। उम्मीदवारों के समर्थकों को भी भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए भी उचित प्रबंध किए जाएंगे। और मतगणना की चरणबद्ध अपडेट के लिए कॉलेज परिसर में मीडिया सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। ताराचक आरसपुरा के किसान फसलों के मनचाहे दाम न मिलने से बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि वो इतनी मेहनत करके फसल लगाते हैं और अब जब उसे बेचने का समय आता है तो मनचाहे दाम नहीं मिलते हैं और उन्हें कम दाम में फसल बेचनी पड़ती है, जिससे उनकी लागत भी पूरी नहीं हो पाती। उन्हें सरकार से उनकी समस्या पर गौर करने की मांग की। कितना इस टाइम कोई 10-12 रुपए के जी है। आलू जेह्ड़े खेती के बारे जी, खेती बहुत मंदी चलन दिया है। इस टाइम 5-6 रुपए किलो जेह्ड़ा आलू है वो मंडी भाव सानू मिलन दिया। इस बारे में कोई तय किया जाए, सोचा जाए तो फिर जी अपना गोभी लाई है, अभी बिल्कुल मंदी चलन दी है, अभी रुपया किलो नहीं कोई लैन दिया। तो इन्हों के बारे तो कोई सोचा जाए। जो साडी गौरमेंट है वो कुछ नहीं सोचन दी, किसानों को बिल्कुल सानू मारन दे पिछे पई है। कोई रेट तय होना चाहिए, इन्हों का कोई रेट है जोड़ा कोई तय होना चाहिए, कोई इसका मसला हल होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि जमींदार जोड़ा जिमीदार है, जोड़ा किसान है, उन्होंने तो असीं रहन नहीं देना। ये बिल्कुल फैसला जोड़ा मोदी साहब का, तो मैनूं इहो ही फैसला लगता है कि जोड़ा किसान है, किसान नूं नहीं जीण देना। किसान के सिर के उत्ते जोड़ा मसला है, जोड़ा किसान के सिर से चलता पाया। घर घर जोड़ा फसल जाता है, चावल जाते ने, कणक जो भी गेहूं जो भी जाता है, जो किसान नहीं करेगा तो बाकी वाले कित्थों खाणगे। तो बाकी वाले का भी हक बनता है, क्योंकि जोड़े जिमीदार बंदे ने वो जाके घर घर कहते हैं, जोड़े मुलाजम आदमी ने, मुलाजम आदमी का भी काम होंदा कि जिमीदार की जोड़ा किसान आ उन्हां दी हिफाजत करना, उन्हां दी मदद करनी। तो जाके तकरीबन सब ने कहना चाहिए कि जो किसान कहते हैं वो होना चाहिए। जोड़े अपने इन्होंने किए ने फैसले वो रद्द होने चाहिए ने। ये मोदी भी अपने टिकया होया, मोदी साहब नूं बेनती है भाई जोड़ा एक मसला तू किसानां दा ये बिल्कुल सही करो, तो नहीं तो भाई नहीं करोगे तो फिर भी यह भी काम खराब होने वाला। जोड़े जो इधर जम्मू कश्मीर के ने जिमीदार ने वो भी दिल्ली पुजने वाले ने। ठीक। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी और गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 24,337 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं रविवार को 26,624 संक्रमित मिले थे।
देश में कोरोना से संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या 96 लाख को पार कर गई है। सक्रिय मामले लगातार 4 लाख से नीचे बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 24,337 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 1,55,560 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 333 मरीजों ने कोविड-19 संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या 1,45,810 हो गई है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 51 के ग्रेवयार्ड में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद राजकुमार द्वारा किया गया। उनके साथ वार्ड के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पार्षद का कहना था कि ग्रेवयार्ड काफी पुराना है और अब इस पर विकास कार्य शुरू किए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो यहाँ हो रहे काम का जायजा ले। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे ही उनके द्वारा विकास कार्य जारी रखे जाएंगे। चंद लोग जो थे वो नहीं चाहते थे यहाँ पर हो, लेकिन मुझे पता है कि परसों भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं काफ वाले, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब भेजे अपने और रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन उनको पूरा प्रॉपर बताया। और मेरे पास नकलें भी हैं इसकी, जो हमारा ग्रेवयार्ड है उसकी नकलें भी हैं। हमारा लोकल ग्रेवयार्ड है, ये मामूली ग्रेवयार्ड नहीं है जो काफ वाले यहाँ पर एंट्री कर जाएं। लेकिन जो हमारे तहसीलदार साहब हैं उन्होंने भी हमें आधे घंटे में ये नकलें बनाकर दी। मैं पटवारी साहब का, तहसीलदार साहब का और जितने भी रेवेन्यू के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने भी काम में अड़चन नहीं डालने के लिए हमारी मदद की। इसी के साथ में जितने भी जो लोग जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं चीदा लोग, उनका बहुत ही आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देर सवेर यहाँ पर चक्कर लगाएं, देखें काम किस क्वालिटी का हो रहा है। क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई समझौता नहीं हम करने जा रहे किसी के साथ, ना हम समझौता करेंगे। आगे भी हमने जो काम किए हैं वो क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ ही किए हैं। इसी के साथ में ज्यादा कुछ ना कहता हुआ जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर आए हुए हैं उनका बहुत आभार करता हूँ। अपनी पार्टी द्वारा अरनिया में लोगों की सुविधा के लिए पाइप लगवाई गई है। अपनी पार्टी नेता रिंकू अरोड़ा मौके पर मौजूद रहे। उनका कहना था कि लोगों की मुश्किलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आगे भी लोगों की मदद के काम जारी रखे जाएंगे। एक डॉक्टर साहब होने पाए बदकिस्मती की ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਚਲੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਟੇਲ DPR ਆਖਦੇ ਉਸੇ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ DPR ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਜਈਏ ਕਰਨੇ ਪਈਏ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਖਤਮ ਦਾ ਨਾਡਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ 79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਕਰਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਪੈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਧਮਾਲੇ ਵਾਲਾ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ 2 ਸਪੈਨ ਬਣੇ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਇਸ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣੀ ਦੇਖਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੰਮਾ ਉਹਦੀ JCB ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਆਖਿਆ JCB ਦੇ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ यूथ की मिली है, सानू आपे काम करना पो तां आगे चाल चलनी है, इयां नहीं चलनी। और रनिया यूथ जेड़ा अज एकजुट है, वो आखदे असें पिंड दे पिछे कोई भी काम करना पो असें इकट्ठी होई करना। और मैं इंदा भरा इंदा बच्चा जेड़ी मेरी ड्यूटी लाणगे मैं वो पूरी करी देगा। नहीं मैं तो इसे आख्या भी अगर इन्हें इस पुल वास्ते अगर सरिया भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, तो भावें पक्का इन्हें ब्रिज बनाई दिओ, क्योंकि जेड़ा ब्रिज बनना खास करिए साढ़े जिमीदारी बहुत ज्यादा फायदा। इयां ने बहुत टर्न पाइए जाना पौंदा, इयां बिल्कुल नजदीक पौंदा शेरा जाग जियां पिंड जिन्ने भी ने सनाए। इस करिए साढ़े सारे इलाके फायदा। मैं आखना कि अगर साड़ी गौरमेंट बने रही, जिससे मैं MLA हा, इन्हें कोई 18 महीने बाद के गौरमेंट छुड़ी होड़ी, पुल भी 2-4 महीने गौरमेंट होर होंदी ते मैं ये भी जेहड़ी कम करी ओड़े दा हा कि तुहें मेरे साथी हैं। कम से कम भी 30 साल मेरे कने चले हो, डटे रहे हो। और जेड़ी MLA शिप है कुत्थे जम्मू अमीर लोगों को खोइए ते फिर खिच्चिए बिशनाह तक आंदी। वो बिशनाह 18 साल उत्थे अड़ी रही, फिर तुसें जोर लाए खिच्चिए हुण तुसें बार्डर पर आंदी, 0 पॉइंट पर आंदी। भाई हुण जेड़ी आई है ना 0 पॉइंट पर, अज पूरा ये कसम खाई लो अपना कट्ठ रखियो। आने वाले टाइम ये जेडी सीट है ये रनीत करानी चाहिए। गौरमेंट भी साड़ी बननी जे, असें उहदे विच ला जाए और तुसें कम कोई नहीं जे रोकन देना। जे दुई चली है इलेक्शन कराने पर तां भी डटे रौना, पिछे नहीं हटना।
ऑल जैन के एसआरटीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि वो पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। उनकी मांगों में 6 पे कमीशन लागू करना, कोला एरियर्स देना व अन्य मांगे शामिल है। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक छीन के लेंगे, अपना हक हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे, अपना हक नहीं छोड़ेंगे, लेंगे अपना हक। ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि सरकार के साथ जो हमारी कमिटमेंट हुई थी वो सरकार ने आज तक पूरी नहीं की। यूटी बनी थी, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि अब हम सीधे सेंटर के अंडर हैं। जो बकाया पेमेंट हमें नहीं मिली अब हमें सेंटर को मिल जाएगी, लेकिन जब से यूटी सरकार बनी है तब से कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो मिलने के गेट थे सब इन्होंने हमारे लिए बंद किए हुए हैं। इलेक्शन थी, सेंटर में 9 मंत्री आए वोटें मांगने के लिए, लेकिन जब कुछ देना होता है तो उनको पब्लिक के साथ मिलने का कोई टाइम नहीं होता। कितना करोड़ों रुपया खर्चा आया है, यही लोगों को दिया जाता है, यही आम जनता को दिया जाता, लोग पेट भरकर खाना खाते। इस वक्त आम जनता सड़क पर है। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी जो पेंटिंग लाइबिलिटी है जिसमें कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला अफेक्ट फ्रॉम 1990 में एंड 6 पे कमीशन एरियर अफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 एंड कारपोरेशन बेनिफिट कोले के ऑलरेडी बिल बनकर सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हैं, जिनका अमाउंट है 16,76,49,497 रुपए। हमारी सरकार से ये मांग है, हमारी जो पेंटिंग लाइबिलिटी है वो विद इन डेज तक क्लियर की। सांबा में बाबा शिवो की छड़ी यात्रा निकाली गई। इस दौरान भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मान्यता है कि इस छड़ी यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। इस दौरान इस यात्रा के बारे में और भी जानकारी दी गई। जाना है तो ये देवी देवता लोग जो हैं एक ज्योत है, इन्होंने ज्योत के रूप में ही मिलना है। तभी हमने इनको फिर गोरन में वहां से अपनी कमेटी की तरफ से पूरा सलाह मशवरे करके इनका हुक्म लिया, जैसे इनका आदेश हुआ। तो है इस छड़ी यात्रा में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। हम इस छड़ी यात्रा का एक मैसेज देना चाहते हैं, जितनी भी हमारी आवाम है जो बाबा शिवो गोरन को जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, हिमाचल के लोग, जब पंजाब के लोग, जब दिल्ली के लोग, जहां जहां से भी लोग बाबा शिवो के दरबार में आते हैं, जो जो बच्चा होगा, नौजवान होगा, बुजुर्ग होगा, बूढ़ा होगा, जो जो इस छड़ी यात्रा में शामिल होगा, जिसकी जो मनोकामना पूरी होगी, जो इस छड़ी यात्रा में शामिल होगा, उसकी जो भी मनोकामना होगी वो बाबा जी पूरी करेंगी। मीटर पैदल आना है और 6 किलोमीटर पैदल जाना है। बस बाबा जी के जयकारे लाने हैं और अपनी मनोकामना उनसे पूरी करनी है। जय हिंद, जय भारत। बोलिए बाबा शिवो महाराज की, देव की, माता रानी कन्नी की। भाजपा कार्यालय कच्ची छावनी में आज भाजपा दलाप्तिलो मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा नेता मनीष खजूरिया, केशव चोपड़ा सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे की कार्यप्रणाली निर्धारित की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को पार्टी को और मजबूत करने के लिए काम करने के दिशा निर्देश दिए गए। जी, आज भारतीय जनता पार्टी हमारा दलाप्तिलो मंडल, जिसके मंडल प्रेसिडेंट मैं केशव चोपड़ा जी, आज मंडल की एक हमने बैठक जो है वो यहाँ पर कच्ची छावनी वाले पंडित प्रेमनाथ डोगरा भवन में हमने रखी है। इसका मेन उद्देश्य यही था कि इलेक्शंस में जो है वो हमारे कार्यकर्ता सारे बिजी थे, तो एक हमने सोचा कि एक इंटरेक्शन जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ कर लें। काफ़ी टाइम से जो है वो बैठक नहीं हुई थी, तो आज हम मिलकर जो है वो आगामी जो पार्टी के प्रोग्राम हमें संगठन से मिले हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक के में हमारे बीच में मुख्यतः रूप से हमारे जम्मू वेस्ट जिला के अध्यक्ष भाई मनीष खजूरिया जी उपस्थित हैं और तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी दलाप्तिलो के मंडल के कार्यकर्ता भी जो है वो इस बैठक में जो है वो मौजूद है। हमने इस बैठक में जो है वो आगामी प्रोग्राम जो पार्टी के हैं उन पर चर्चा की है और भारतीय जनता पार्टी की स्कीमें जो है वो लोगों तक हम घर घर कैसे लेकर जाएं, इस पर विचार करते हुए लोगों को जो है हमने आज यहाँ पर गाइड किया है। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। होने लगी हैं खबरें,
दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान।